All right. Hello, everyone. In this class, we are going to be starting with graphs of trigonometric functions. We did trigonometry, but the graphs were remaining. So I would like to cover the graphs of trigonometric function in today's class. Now, we are going to be looking at the graphs of sine function, cosine function, and tangent function. So the first one is sine function. Y equals to a sine bx plus c. That's general way of writing a sine function. One of the example is simple sine x का function, y equals to sine x. If you just compare this with this, what's the value of a going to be? What is the coefficient of sine x over here? The coefficient of sine x is positive 1. What is the coefficient of x over here? That's also 1. What is the value of c over here? What has been added or subtracted over here? Nothing. C value is 0. Now, these A, B, and C values play a significant role in the sketch of the graph. ये जो A की value है, that is called the amplitude of the function. B is the number of cycles of the sine function drawn in 360 degree. ठीक है, ये अभी हम बात करते हैं. And C is the number of units of vertical translation. अब इस पे बात करते हैं. Let's consider the basic graph of sine function. Now, if you look at my screen, this is the basic example of sine function. The sine function starts from 0. Sine of 0 is 0 degree. Okay. Sine of 0 is 0 degree. Then sine of 90 is 1. Sine of 180 degree is 0. Sine of 270 degree, calculator से check कर लीजिएगा. Sine of 270 degree is -1 and sine of 360 degree is 0 again. If I just zoom this out, can you see that the same pattern? If you connect these points, there is a same cycle being repeated after every 360 degree. तो ये एक cycle जो complete हो रही है sine की, that is in 360 degree, which means that the period of the sine function is 360 degree. Period का मतलब है कि एक cycle 360 degree के अंदर complete होगी. तो दूसरी cycle फिर किस में होगी? दूसरी cycle 360 degree से start होगी और 720 degree में complete होगी. Okay, this sine function is called a periodic function क्योंकि after every period it repeats itself. तो हर 360 degree के बाद it's going to repeat. Now let's draw the basic sketch of sine x and then we are going to look at the variation. I want you guys to take out your calculator. Let's draw the graph of simple sine x function from -360 to 360. So 0, 90, 180, 270, 360, -90, -270, -180, -270, and -360 degree. Okay. Now, if I ask you what's the value of sine of 0 degree, तो आप अपने कैलकुलेटर में sine of 0 डालेंगे, you're going to get 0. Sine of 90 degree, you're going to get 1. ठीक है, ये जब जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग साथ साथ करते रहेंगे. Sine of 180 degree, 0. Okay. Sine of 270 मुझे बताएं क्या वैल्यू आ रही है? -1. Sine of 360 degree. What is sine of 360 degree in the calculator? Sine of 360 is 0 again. So now if you connect these points using a curve, this is the graph of 1 sine x. This is one cycle of sine x. You can see that the graph starts from 0 and ends at 360 degree. इसका एक period जो है वो 360 degree का है. Are we all clear till here? एक पीरियड यानी कि एक साइकिल जो कंप्लीट हो रही है वो 360 डिग्री में कंप्लीट हो रही है. नाउ साइन ऑफ -90 अगर आप वापस से एक्सटेंड करें, साइन ऑफ -90 इज गोइंग टू बी -1. साइन ऑफ -180 इज 0. साइन ऑफ -270 इज +1 एंड साइन ऑफ -360 इज 0 अगेन. सो यू कनेक्ट दीज पॉइंट्स. This is another cycle of sine function. So right now from -360 to 360 you are observing two cycles. So from 0 to 360 there is one cycle. So
the number of degrees in which one cycle gets completed is called the period. और साइन के फंक्शन का जो साइन एक्स का जो पीरियड होगा वो होगा 360 डिग्री. ठीक है, साइन एक्स का पीरियड जो होगा वो 360 डिग्री है. यहां पे जो b की वैल्यू है दैट इज 1 इन दिस एग्जांपल. So if b is 1, which means that the coefficient of x is 1, which means that there is only going to be one cycle of sine function in 360 degree. अगर यहाँ पे b की वैल्यू 2 होती, so दो साइकिल होती 360 डिग्री में, so one cycle would be in 180 degree. अभी हम एग्जांपल्स करेंगे. Okay, now just look at this graph and tell me the minimum value of this sine function. क्योंकि हम functions कर चुके हैं क्लास में, can you guys tell me the minimum value of sine function? By looking at this graph, what is the minimum y value? Minus 360. Minimum y value? -1. -1. And what is the maximum y value? 1. So now can you tell me what's going to be the range of this function? Y is equal to sine x, and what's the value, what's the range of the sine x function? Sine x की minimum value है -1 और maximum value है +1. So that is called the range of sine x function. For a domain from 0 to 360 degree, yeah, from -360 to 360 degree, the range of the function is from -1 to 1. Okay, the minimum value is -1, the maximum value is 1. Are we clear till here? Also, let's go back to the quadrant system. Sin theta की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती थी? सर जरा ये समझा दें आप, वो कोई साइकिल्स का कह रहे थे, इज द ग्राफ रिलेटेड टू द साइकिल? साइकिल, ये एक साइकिल है साइन के फंक्शन की. दिस इज जस्ट वन साइकिल. Okay. This is another cycle. Now, in how many degrees is one cycle being completed? 360. Okay. 360 degree. Okay, sir. Okay. अच्छा, what was I asking? I was asking कि in which quadrant is sine का function positive? जो चार quadrants हमने study किए थे, कौन कौन से quadrant में sin theta was positive? First and second. First and second, which means if the angle is between 0 and 180, sin theta की value is positive. So can you look at the graph and see that sin theta has a positive value when the angle is between 0 and 180? First quadrant में sin theta is positive. Second quadrant में sin theta is still positive. Third quadrant में sin theta is negative. Fourth quadrant में sin theta is negative. Are we clear with this idea? Okay, moving on. Now this a value is the amplitude of the sine function. Now amplitude is defined as the distance of the top point on the graph from the mean line. The mean line over here is at 0. The c value, which tells you the number of vertical translation, that is 0 in this case. यानी कि sin x का ग्राफ की ये जो mean line है, horizontal line है, that is at 0 degree. 0 पे है. सही है? b की value over here is 1. That means one cycle is being made, and a value over here is also 1. That means that the amplitude of the sine function over here, ये distance को हम basically amplitude का नाम देते हैं. Okay, this distance is just 1, so amplitude is going to be 1. अगर यहाँ पे 2 होता तो amplitude 2 होता, तो इसका मतलब है कि फिर आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके का होता, 2 sin x का ग्राफ, यानी कि फिर amplitude is twice. Okay, so let's see what happens if a की वैल्यू चेंज होती है, या b की वैल्यू चेंज होती है, या c की वैल्यू चेंज होती है. Yes, Abdul Rafi. Any questions, guys? If you have any questions, please ask. Okay, moving on. Let's look at the simple sin x का ग्राफ. ठीक है, यहाँ पे मैंने sin x का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. You can see that the graph starts from 0. The first cycle ends at 360 degree. इसकी maximum value 1 है, minimum value 270 है. ठीक है, अब मैं ये a की वैल्यू चेंज करूंगा. I'll just change the slider. I'll increase the a value to 2. Notice what happens to the graph. Okay,
Guys, notice what happens to the graph as a value is changed. Now, when a value is 2, do you see a vertical stretch? Do you see that the graph has been stretched in the y direction? The maximum value on the graph becomes 2 and the minimum value becomes -2. सही है? तो ये graph basically stretch हो गया है in the y direction. Now the maximum value is 2 and the minimum value is -2. The amplitude is 2. Understood? अगर a की value 3 कर देंगे, see what happens to the graph. The maximum value is now 3 and the minimum value is -3. सर लेकिन आपने तो बताया था कि साइन की मतलब ऐसे वाई एक्सिस पे सिर्फ 1 और -1 होती है। बिल्कुल, sin x की, 1 sin x की. This is now 3 sin x. Okay, this is the graph of 3 sin x. तो maximum value क्या होगी इसकी? 3 और minimum value क्या होगी? -3. So और सर what सी क्या होता है? 3 is basically the amplitude over here. नहीं सी सर, सी क्या होता था? C is the unit of vertical translation, कि कितने यूनिट्स ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. अभी मैं उस पर भी आता हूँ. सही है? तो A की वैल्यू चेंज करने से आपके पास वर्टिकल स्ट्रेच हो रहा है, एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो रहा है. सबने ये ग्राफ पे देख लिया? अब मैं इसको जब रिड्यूस करता हूं और वापस 1 पे ले आता हूं तो देखो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है. ये सिंपल 1 sin x का ग्राफ है. अब अगर a की वैल्यू 0.5 हो जाती तो एम्पलीट्यूड और कम हो जाता और दिस इज द ग्राफ. सो जब इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0.5 sin x, तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास -0.5 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 0.5. तो ये इफेक्ट आपने स्टडी कर लिया. व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेंज द ग्राफ, व्हेन यू चेंज द a वैल्यू. ओके, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ sin x. सर अगर ये नेगेटिव में होता ए वैल्यू तब भी ऐसे होता? नहीं, अब अगर नेगेटिव होता तो साइन फ्लिप हो जाती. सही है, उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं. मतलब उस पर ग्राफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा एक्स एक्सिस में. देख लो. सही है, ये देखो मैं अभी अब इसको -1 पे कर देता हूँ. तो -1 पे क्या हुआ? ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट कर गया एक्स एक्सिस पे. सही है, इस पे अभी थोड़ी देर में पॉजिटिव बात नेगेटिव हो करते गया, हैं. नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बेसिकली. जी, सारी y वैल्यूज नेगेटिव हो गई, -1 से मल्टीप्लाई हो गई. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सिंपल 1 sin x ग्राफ. अब चेक करते हैं व्हाट हैपेंस इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ b. व्हाट इज द b वैल्यू टेलिंग यू? कमिंग बैक टू द स्लाइड, b की वैल्यू आपको क्या बता दी है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 360 डिग्री. या 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस एक ही बात है. 360 डिग्री में कितनी साइकिल्स हैं? sin 1x, अगर b की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है कि देयर इज गोइंग टू बी 1 साइकिल इन 360 डिग्री. सो कमिंग बैक टू द ग्राफ ओवर हियर, अगर b की वैल्यू 1 है, हाउ मेनी साइकिल्स डू यू सी इन 360 डिग्री? अभी कितनी साइकिल्स बन रही हैं? 1. अब मैं b की वैल्यू जब 2 कर दूंगा, सो अब क्या हुआ? 360 डिग्री के अंदर कितनी साइकिल्स बन रही हैं? How many cycles of sine wave can you see in 360 degree? दो. So b की value 2, b की value is basically telling you the number of cycles in 360 degree. So अगर 360 degree के अंदर there are 2 cycles, तो एक साइकिल कितने डिग्रीज में बनेगी? 180 डिग्री. So what's the period of the graph? Period is defined as कि एक साइकिल कितने डिग्रीज में बनेगी. तो अब पीरियड क्या हो जाएगा? 0 till 180. पीरियड 180 डिग्री होगा, यानी कि एक साइकिल 180 डिग्री के अंदर कंप्लीट हो रही है. 360 से तो वो नहीं करेंगे ना, कभी वो एंगल्स डिफरेंट भी कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अब b की वैल्यू 2 का मतलब है देयर आर गोइंग टू बी 2 साइकिल्स इन 360 डिग्री. एक साइकिल 180 डिग्री में बनेगी, सो द पीरियड इज गोइंग टू बी 180. नाउ आई एम चेंजिंग b की वैल्यू टू बी 3. सो हाउ मेनी साइकिल्स कैन यू सी इन 360 डिग्री? फ्रॉम 0 to 360 देयर आर 3 साइकिल्स. सो बेसिकली द b वैल्यू टेल्स यू द नंबर ऑफ साइकिल्स. आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो. सही है, b की वैल्यू कम कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. अब देयर आर 3 साइकिल्स बीइंग मेड. अगर 3 साइकिल्स बन रही हैं 360 में, तो एक साइकिल कितने डिग्रीज में बन रही होगी? 120. 120. So what's the period of this graph now? 120. 120. Understood? Now let's go back to b की वैल्यू 1 now. अब b की वैल्यू 1 का मतलब था 1 साइकिल इन 360 डिग्री. I'm going to reduce this down, b की वैल्यू to 1/2. See what happens to the graph. 0.5. अब देखो, it's a horizontal stretch basically.
आपका ग्राफ पहले जब b की वैल्यू इंक्रीज कर रही थी तो आपका ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेच इनवर्ट हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा साइकिल्स उतनी जगह में बन रही थी। अब आपने जब b की वैल्यू को कम कर दिया तो आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच आउटवर्ड हो गया, और आपकी एक साइकिल अब कितनी डिग्रीज में बन रही है, ग्राफ से चेक करके मुझे बताएं। 720. 720, which means कि one cycle is getting completed in 720. B value is half over here. इसका मतलब है कि there is going to be half a cycle in 360. Half a cycle is going to be in 360 degree and one full cycle is going to be in 720. So what's the period of this graph now? 720. 720. Period of this graph is 720. Understood? Okay. Reset कर दिया मैंने सबको। अब देखते हैं C की वैल्यू चेंज करने से क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, नाउ राइट नाउ C is 0. C again was the number of units of vertical translation. जब C की वैल्यू 0 है तो आप देख सकते हैं कि x एक्सिस के अबाउट ये आपका कर्व ऑसिलेट कर रहे हैं। सही है। अब अगर मैं C की वैल्यू 1 कर दूंगा, नोटिस व्हाट हैपेंस, व्हाट जस्ट हैपेंड, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। 1 यूनिट ऊपर चला गया। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन नाउ, तो अभी आपके पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू sin x प्लस 1। इस फंक्शन की रेंज क्या है? व्हाट्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 2. 2। सही है। इफ दिस ग्राफ वुड हैव गॉन 1 यूनिट डाउन, सही है, c की वैल्यू 0 से, अब मैं इसको 1 यूनिट नीचे ले जा रहा हूं, -1, so the entire graph is going to go 1 unit down. Now what's the range of the function? Minimum value is -2, maximum value is 0. Okay, so do we all agree कि a, b और c की वैल्यू से क्या क्या चेंजेस आती हैं? a value represents the amplitude, or you can say it represents the vertical stretch, कि आपका ग्राफ y डायरेक्शन में कितना स्ट्रेच होगा। सही है। b value tells you the number of cycles of the sine function in 360 degree, और b की वैल्यू आपको ये बताती है कि कितनी साइकिल्स बनेंगी 360 डिग्री में। b की वैल्यू 1 है तो 1 साइकिल, b की वैल्यू 2 है तो 2 साइकिल्स, एंड सो ऑन। ओके, एंड c वैल्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल ट्रांसलेशन। c की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, दैट मींस दैट द ग्राफ इज गोइंग टू गो उतने यूनिट c यूनिट्स अबव द x एक्सिस, एंड c वैल्यू इज -1, इट मींस दैट द ग्राफ विल गो 1 यूनिट डाउन from the previous position. Okay, now coming back to our graphs, we are going to be sketching the graphs now. सर ये चेंज करने से क्या होता है? a change करने से amplitude change हो रहा है। सही है। now see, now we have the graph of y equals to 2 sin x. तो मुझे ये बताएं कि b का इफेक्ट वापस समझा दें। कौन सी चीज? एक दो बार b का इफेक्ट वापस समझा दें। b का इफेक्ट ये आता है, b बताता है number of cycles, number of, if you are going to change the value of b to 2, इसका मतलब है कि 2 साइकिल्स बनेंगी 360 डिग्री में। सही है। c की वैल्यू 0 कर देते हैं अभी। अब 2 साइकिल्स बन रही 360 डिग्री में। c, अगर c की वैल्यू आप 3 कर दोगे तो 3 साइकिल्स बनेंगी 360 डिग्री में। तो 360 के अंदर देयर आर 3 साइकिल्स इफ यू कैन सी। b की वैल्यू 1/2 कर दोगे तो आधी साइकिल बनेगी 360 डिग्री में, हाफ साइकिल इन 360 डिग्री। b की वैल्यू बेसिकली मैं 1/2 कर रहा हूँ, 0.5। ओके, हाफ साइकिल बन रही है 360 डिग्री में, तो फुल साइकिल कब बनेगी? 720 डिग्री में। सही है। तो पीरियड, यस, पीरियड इज डिफाइंड एज 360 डिवाइडेड बाय b। कभी भी आपको इक्वेशन देख के फिगर आउट करना है कि पीरियड क्या है इस ग्राफ का, सो द पीरियड ऑफ द ग्राफ, द न्यू पीरियड ऑफ द ग्राफ is always going to be 360 divided by the value of b. अगर b की वैल्यू 2 है, ठीक है, so 360/2 that's going to be 180, यानी कि एक साइकिल 180 डिग्री में बनेगी। Now let's look at these example. If you have the equation y equals to 2 sin x, तो अब क्या हो रहा है चेंज? कहाँ चेंज आ रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 2, b की वैल्यू 1 है। सही है। तो इसका मतलब है there is only 1 cycle in 360 डिग्री, और c की वैल्यू 0 है। नाउ इफ आई आस्क यू कि इस फंक्शन की रेंज कहां से कहां तक होगी, तो मुझे उसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि sin x की रेंज कहां से कहां तक है? sin x का फंक्शन कहां से कहां तक होता है? व्हाट वाज द रेंज ऑफ sin x फंक्शन? -1 to 1. -1 to 1। ओके, -1 to 1। So if the range of sin x was from -1 to 1, तो 2 sin x would be from, you just multiply the inequality by 2,
-2 से लेकर 2 तक, यानी कि अब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा दैट्स गोइंग टू बी फ्रॉम -2 to 2। मैं सिर्फ 0 से लेकर 360 डिग्री तक बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए अभी। Okay, this is 1, this is 2, this is -1, -2. Now, if you want to draw the graph using the help of a calculator by plotting the values, you can do that as well. ये 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। अब ज्यादा जब कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ जाए ना, यू कैन स्टिल यूज द कैलकुलेटर। अपने कैलकुलेटर को भी डिग्री मोड में कर लें। ओके, एंड जस्ट टाइप इन द फंक्शन 2 sin अल्फा x, ठीक है। ये फंक्शन आपने कैलकुलेटर में लिख दिया। फिर आप ये यहाँ पे अल्फा के नीचे एक बटन होगा कैल्क, CALC। जस्ट प्रेस दैट बटन, इट्स गोइंग टू आस्क यू फॉर द वैल्यू ऑफ x। आप डाल दें 0 पे और प्रेस इक्वल्स टू, तो 0 पे आपका आंसर आएगा 0। देन प्रेस कैल्क बटन अगेन, सर ये प्रेस कहाँ है सर? 90 डिग्री, 90 डिग्री पे आंसर आएगा 2। जी क्या कह रहे हैं? मिल गया सर, अभी इसको यूज कैसे करें? पहले आपने पूरा फंक्शन लिख दिया 2 sin x इन द कैलकुलेटर। 2 sin x के बाद लिखने के बाद कैल्क का बटन दबाओगे और वो आपसे पूछेगा कि कौन सी x की वैल्यू पे यू नीड टू फिगर आउट द 2 sin x की वैल्यू। सब करेंगे? सर ये तो एरर दिखा रहा है। नहीं बेटा, पहले तो पूरा 2 sin x का फंक्शन लिखो। 2 sin अल्फा x, ये ब्रैकेट क्लोज के ऊपर देखो x लिखा हुआ है, जी ठीक है। ये पूरा फंक्शन, इफ यू गाइस कैन सी ऑन द स्क्रीन, this is the function I want everyone to write on the calculator. Then press calc का बटन, it's going to ask you कि अब कौन सी वैल्यू पे आपको ये फंक्शन कैलकुलेट करना है। प्रेस 0 एंड प्रेस इक्वल्स टू, तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 0। इसके बाद दोबारा यू आर गोइंग टू प्रेस कैल्क का बटन, प्रेस 90, प्रेस इक्वल्स टू, तो देखो अब मेरे पास कैलकुलेटर पे 2 की वैल्यू आ रही है। देन प्रेस कैल्क अगेन, प्रेस 180 डिग्री, प्रेस इक्वल्स टू। कोई मुझे बता सकता है कि 180 डिग्री पे क्या वैल्यू आ रही है उनके पास कैलकुलेटर पे? 0 0। इसी तरीके से 270 डिग्री पे क्या आ रही है? -2 -2। और 360 पे 0 आ रही होगी सबके पास, yes ठीक है। तो अब आप जब ये ग्राफ बनाएंगे, दिस इज द साइकिल, this is the graph of 2 sin x. What is the amplitude? Amplitude is this, the distance from the mean line to the top point. What is this distance? 2 units. Okay, what is the range of this function? The range is from -1 to -2 to 2. Guys, a quick question, is it a 1-to-1 function or a many-to-one function right now? many to 1 many-to-one, ठीक है। मुझे ये बताओ, अगर मुझे अपना फंक्शन 0 से स्टार्ट करना है और मैं चाहता हूं कि ये 1-to-1 फंक्शन हो, तो कहां तक मेरे ग्राफ पे ये 1-to-1 फंक्शन अभी है? मुझे 0 से आगे कहां तक 90 जाना पड़ेगा कि ये ग्राफ 1-to-1 रहे? 90 सर 90 तक। ये 1-to-1 फंक्शन है अभी, सही है। जैसे ही मैं 90 डिग्री को क्रॉस करूंगा, ये many-to-one फंक्शन बन जाएगा। ओके, इस पे भी बात करेंगे अभी। तो 2 sin x का ग्राफ सबको क्लियर है? सिर्फ क्या हुआ, y डायरेक्शन में चेंजेस आई हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। अब sin हाफ x, ये ग्राफ ड्रॉ करना है हमें फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। इस द कोफिशिएंट ऑफ sin इज 1, यानी कि एम्पलीट्यूड विल बी 1। अगर एम्पलीट्यूड 1 है तो क्या रेंज में कोई चेंज आएगा? नहीं सर नहीं आना चाहिए। अच्छा, sin हाफ x हो या sin x हो, इन दोनों की रेंज -1 से लेकर 1 तक ही होगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। ओके, अब ये हाफ का क्या मतलब है? यहाँ पे हाफ साइकिल होगा हाफ 360 साइकिल कितने डिग्रीज में होगा? 360 में 360 डिग्री में हाफ साइकिल होगा। ओके, तो 360 डिग्री में अगर हाफ साइकिल है तो फुल साइकिल कब होगा? 720 720 में। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ 0 से लेकर 360 डिग्री तक ड्रॉ करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल ड्रॉ करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? ये 0, 90, 180, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, लेट्स से 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री, सही है। 720 यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मुझे तो फुल साइकिल नहीं ड्रॉ करनी। आई जस्ट हैव टू ड्रॉ 0 से लेकर 360 डिग्री तक। अब 0 से लेकर 360 तक हाफ ही साइकिल बनेगी। सो साइन
again, if you want to use your calculator, go ahead, sine half of 0, you're going to get 0. ठीक है, 360 डिग्री में हाफ साइकिल बनेगी। तो ये पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज दिस पॉइंट? इट्स गोइंग टू बी 1, आधी साइकिल बनेगी। ठीक है, 180 डिग्री पे साइन, यहाँ पे इफ यू आर गोइंग टू प्लग इन x की वैल्यू 180, तो साइन हाफ ऑफ 180 इज बेसिकली साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड साइन ऑफ 90 इज 1। ऑलराइट, तो 180 डिग्री पे इस इक्वेशन के मुताबिक द वैल्यू इज गोइंग टू बी 1। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैनी टू 1 है या 1 to 1 है, आपका क्या आंसर होगा? 1 to 1 Many to one. मैनी टू 1 है। ठीक है, हाँ? मैनी टू 1 है, मैनी टू 1 है ना बेटा, कर्व है, Correct. मैनी टू 1 है। अच्छा, और इसकी रेंज, इस डोमेन तक, इस डोमेन में इसकी रेंज क्या है फंक्शन की? Y is greater than 0, less than 1. गुड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसकी रेंज है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ में हाउ मेनी साइकिल्स डू यू एक्सपेक्ट इन 360 डिग्री? हाउ सर मेनी 2 साइकिल्स वुड बी? 2 साइकिल्स। ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। 0 से लेकर 360 डिग्री तक यू आर गोइंग टू हैव 2 साइकिल्स। तो एक साइकिल कितने डिग्रीज में बनेगी? 180. 180। 180, एक साइकिल अगर 180 में, तो हाफ साइकिल होगी 90 में, क्वार्टर साइकिल होगी 45 पे। सो इफ यू वांट, अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यार मुझे कितना गैप लेना चाहिए, स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होगा, सो यू कैन डू गैप इक्वल्स टू 90 अपॉन द वैल्यू ऑफ बी। अब बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 90 अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। तो अगर आप चाहें तो 45 डिग्री के इंटरवल ले लें। ठीक है, सो 180 प्लस 45 कर दें, 225 आ जाएगा। 225 प्लस 45 करेंगे 270 आ जाएगा, प्लस 45 ये 315 हो जाएगा। सही है। अब देखो कंजस्टेड ग्राफ बन रहा है क्योंकि उतनी सी जगह में 2 साइकिल्स आपको कंप्लीट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन की? साइन 2x की 1. मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 और मिनिमम वैल्यू होगी -1। सही है, तो अगर आप कैलकुलेटर पे वैल्यूज देंगे ना, तो साइन 0 0 होगा, साइन साइन 2 टाइम्स 0 0 होगा, साइन 2 टाइम्स 45 आपके पास 1 आ जाएगा, साइन ऑफ 2 टाइम्स 90 डिग्री आपके पास 0 आएगा, साइन ऑफ 2 टाइम्स 135 आपके पास -1 आएगा, और साइन ऑफ 180, साइन ऑफ 2 टाइम्स 180 0 होगा। तो ये आपकी एक साइकिल होगी साइन के फंक्शन की, साइन 2x के फंक्शन की एक साइकिल। तो दूसरी साइकिल फिर दोबारा 180 डिग्री में कंप्लीट होगी, साइन ऑफ 225, साइन ऑफ 270, साइन ऑफ 315 एंड साइन ऑफ 360। क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस है, इनका ग्राफ आफ्टर एवरी पीरियड सेम ही होगा। यानी कि अगर एक साइकिल साइन की ये है, तो दूसरी साइकिल भी इसी शेप की होगी। ये पीरियोडिक फंक्शंस कहलाते हैं। आप समझ में आया? 360 डिग्री के अंदर यहाँ पे 2 साइकिल्स फिट हो रही हैं। ओके, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? -1। तो साइन 2x की रेंज कहां से कहां तक होगी? -1 से लेके 1 तक। क्योंकि एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वर्टिकल स्ट्रेच पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये वाला ग्राफ सबको क्लियर है? यस सर। ओके, y इक्वल टू साइन x प्लस 1। अब मुझे वर्बली बताओ कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, साइन x प्लस 1 का ग्राफ में क्या होगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. 1 यूनिट ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा. ऊपर जाएगा। Okay, so if you are going to draw this graph from 0 to 360 degree, let's take this as 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। ठीक है, इसको मैं 1 ले रहा हूँ, 1 यूनिट, -1, 2, -2। Now, what is the axis of rotation? What is the c value? c value is 1. Okay, इसका मतलब है कि अब 0 नहीं है। पिछले सब ग्राफ में 0 वाली लाइन y इक्वल टू 0 के अबाउट ग्राफ रोटेट कर रहा था। अब जो है वो y इक्वल टू 1 के अबाउट रोटेट करेगा। तो सबसे पहले तो मैं y इक्वल टू 1 की लाइन बना देता हूँ। दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल टू 1। Now your entire sine function is going to rotate about this line. How many cycles would you expect? सर 360 के अंदर एक ही होगा ना?
360 डिग्री के अंदर, बिकॉज वन साइकिल, एक्स का कोफिशिएंट 1 है। और एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका? सर वो भी 1 ही होगा, 1 to एम्पलीट्यूड -1। 1 होगा, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी? सर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ना, क्योंकि तो +1। रेंज क्या होगी? रेंज मुझे बताओ। 2 to 0। 2 से 0। मतलब 0 से 2, सही है। यस, 0 से सर। 2। तो साइन एक्स अगर -1 से 1 तक है, तो साइन एक्स +1 वुड बी फ्रॉम 0 to 2। गुड। नाउ लेट्स कंप्लीट द ग्राफ। साइन ऑफ 0 + 1 वुड बी, अब ये आप अपने कैलकुलेटर में कर सकते हो, जो तरीका मैंने बताया है ना, उससे आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। साइन ऑफ 0 + 1 इज गोइंग टू बी 1। साइन ऑफ 90 डिग्री +1 इज गोइंग टू बी 2। साइन ऑफ 180 डिग्री होता है साइन ऑफ 180 डिग्री क्या होता है आपके पास? सर 0। 0। 0। 0 में +1 कर दोगे तो ये +1 पे पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। साइन ऑफ 270 होता है -1, +1 कर दोगे तो 0। साइन ऑफ 360 डिग्री +1, अगेन 1। सो दिस इज योर साइकिल ऑफ साइन फंक्शन। आर वी क्लियर टिल हियर? अब मुझे बताओ, अगर ये y को जो साइन एक्स -1 होता तो ग्राफ कहाँ चले जाता? सर बिलो द एक्स Below। एक्सिस। ठीक है। राइट नाउ यहाँ पे रेंज जो होगी ना, अगर आपसे पूछा जाए ये फंक्शन देके कि रेंज क्या है, तो आप कहोगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। दैट इज द रेंज फॉर द डोमेन। ओके, लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ। y इक्वल टू साइन एक्स -1, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस y इक्वल टू 2 साइन एक्स -1। अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो एम्पलीट्यूड भी 2 है, एक साइकिल बनेगी 360 डिग्री में, और -1 इज द हॉरिजॉन्टल, जो आपका वर्टिकल ट्रांसलेशन है उसकी वैल्यू -1 है, यानी कि पूरा का पूरा 2 साइन एक्स का ग्राफ 1 यूनिट नीचे चले जाएगा। सही है। तो अब इसको स्केच करना है हमें। अच्छा, अब क्योंकि -1 है तो आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन -1 पे बना दें। दिस इज -1। ओके, अब आप क्योंकि स्केच करना है ना हमें, तो हम अब रेंज फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है। 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स बाय द वे कहाँ से कहाँ तक होगा? साइन एक्स होता था -1 से लेके 1 तक, तो 2 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम -2 to 2। और फिर 2 साइन एक्स -1 कहाँ से कहाँ तक होगा? आप क्या करोगे? दोनों साइड पे -1 कर दोगे। तो व्हाट इज -2 -1? -3। और 2 -1 2। यानी कि अब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा उसकी मिनिमम वैल्यू होगी -3 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 2। ठीक है। ये पहले से भी आपको पता है, अगर आप इस तरीके से करते हो, या फिर आप अपने वही वाले तरीके से भी कर लें, कैलकुलेटर में वैल्यूज प्लग इन करें और देखें कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो लेट्स से ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। ओके, अब आप मुझे ये बताएं, ये 1 है, ये 2 है, ये -2 है, ये -3 है, ये 0 है। अब आप अगर कैलकुलेटर में वैल्यूज लेते हैं 2 साइन ऑफ 0 -1, तो आपके पास कैलकुलेटर में वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, किसकी मैक्सिमम वैल्यू? इसकी फंक्शन की, इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। जी जी 1 है, थैंक यू। दिस इज 1। ओके ओके, नाउ लेट्स कंप्लीट दिस ग्राफ। आपका जो ग्राफ है वो इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, उसके अबाउट रोटेट करेगा। सो -1 पे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? सॉरी, 0 डिग्री पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? आप अपने कैलकुलेटर में पूरा एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, 2 साइन अल्फा एक्स -1, प्रेस कैल का बटन, 0 की वैल्यू प्लग इन करोगे, आपके पास आंसर -1 आना चाहिए। देखें सबके पास आ रहा है -1। फिर कैल का बटन दबाएं, 90 डिग्री प्रेस करें, 90 डिग्री पे आपके पास वैल्यू 1 आ रही है। प्रेस कैल का बटन, 180 डिग्री पे फिगर आउट करें, 180 डिग्री पे मेरे पास -1 फिर से आ रही है। अब देखें 270 डिग्री पे आपके पास क्या आ रही है, जरा मुझे देख के बताएं। -3। वेरी गुड, -3। और 360 डिग्री पे आपके पास -1 फिर से आ रही होगी। तो ये आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। सही है।
और इसकी रेंज क्या हो गई, -3 से लेके 1 तक। बताने का मकसद ये था कि even only if you're asked, if you're given this equation for and the domain and you are asked to figure out the range, you can directly figure out the range without actually drawing the graph. There is no need of drawing the graph at every time. If it's just a 2 marks question asking about the range, you can just figure out the range like this. No need to draw the graph. ग्राफ आप सिर्फ तभी बनाएंगे जब आपको स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। अच्छा, अब लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। अब है ना, मुझे ये बताओ कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। y इक्वल्स टू साइन ऑफ x माइनस 90 डिग्री। ठीक है, हम y इक्वल्स टू साइन ऑफ x माइनस 90 और y इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस 90 डिग्री का भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उसको साइन x के ग्राफ से कंपेयर करते हैं। या बल्कि पहले हम ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये साइन x का ग्राफ है और I'm going to add a graph over here that says y equals to sine x minus 90. Just compare the two graphs. What obvious difference do you see? What is the obvious difference do you see? सर 90 डिग्री पीछे हो गया ग्राफ। Are you sure? 90 डिग्री पीछे हो गया या 90 डिग्री आगे चला गया है? ये मेरा फर्स्ट ग्राफ था जो 0 से स्टार्ट हो रहा था। आगे चले। साइन ऑफ x माइनस 90 से क्या हुआ कि मेरा जो साइन का ग्राफ है वो 90 डिग्री हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री राइट पे चला गया है। ऑल्दो वहां पे इक्वेशन में इट्स साइन ऑफ x माइनस 90, लेकिन द ग्राफ हैज बीन शिफ्टेड 90 डिग्री टू द राइट। आर यू गेटिंग दिस? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज लेट मी नो राइट नाउ। यस? Sine Yes. of, compare the graph of sin x with sin x minus 90. The new graph sin of x minus 90, that graph is 90 degree towards the right of the previous graph. यानी कि अब ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 90 से स्टार्ट हो रहा है और फिर जाके एक साइकिल 360 के बाद भी 90 डिग्री, यानी कि 360 प्लस 90 450। देखो ये वाली जो साइकिल एक कर्व बनेगा, ये वाला जो नेक्स्ट ग्राफ मैंने बनाया ये 450 पे जाकर फिनिश हो रहा है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग फिनिश्ड एट 360 वो 450 पे कंप्लीट हो रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? यानी कि पूरा का पूरा साइन एक्स का ग्राफ 90 डिग्री फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स द राइट। क्लियर? अब मुझे ये बताओ कि हाउ वुड द ग्राफ बी डिफरेंट फॉर साइन ऑफ एक्स प्लस 90? 90 डिग्री पीछे चला जाएगा। पीछे चला जाएगा। साइन ऑफ एक्स प्लस 90। ओके, जस्ट ऑब्जर्व दिस ग्राफ। जो ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा था, that graph will now start from minus 90. Okay, so sine of x plus 90 means that the graph has been translated horizontally. ये basically translation हो रही है ना horizontal direction में। पहले ग्राफ 90 डिग्री ट्रांसलेट होके फॉरवर्ड चला गया towards the right, प्लस 90 डिग्री की ट्रांसलेशन हुई। अब जो है साइन ऑफ x प्लस 90 में द ग्राफ ट्रांसलेटेड बैकवर्ड 90 डिग्री। सही है, तो माइनस 90 से स्टार्ट होगा तो फिनिश कहाँ होगा? 270 डिग्री पे। 360 से 90 डिग्री पहले फिनिश हो जाएगा। मेक सेंस? तो ये देखो 270 डिग्री पे ये एक साइकिल फिनिश हो रही है। लेकिन अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये साइन x प्लस 90 वाला जो ग्राफ है उसका पीरियड क्या है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन ऑफ x प्लस 90? पीरियड होता है कि 270. कितनी डिग्रीज में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। 360 सर। वेरी गुड, 360। माइनस 90 से लेके 270 पे खत्म हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो 360 डिग्री। ओके, ऑलराइट। तो अब क्योंकि ये ग्राफ समझ में आ गया है ना, तो आगे चलते हैं। ठीक है, साइन ऑफ x माइनस 90 का मतलब है 90 डिग्री ग्राफ फॉरवर्ड हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट, और साइन ऑफ x प्लस 90 का मतलब है कि ग्राफ जो है वो 90 डिग्री टुवर्ड्स द लेफ्ट ट्रांसलेट कर जाएगा। ये सारी चीजें हमें ना ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। ओके ओके, क्विक क्वेश्चंस एवरीवन। इस ग्राफ को मुझे देखकर बताएं कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c।
A is 2. ए बेटा एम्पलीट्यूड होता था। सी, सबसे पहले सी की वैल्यू बताओ, किस पॉइंट के अबाउट मेरा 5 पूरा सर। आपका ग्राफ रोटेट कर रहा है। 5 सी की वैल्यू क्या होगी? सर, 4 Five. सी की वैल्यू वुड बी 5। ओके, अब बी की वैल्यू मुझे बताओ कि हाउ मेनी साइकिल्स डू यू ऑब्जर्व इन 360 डिग्री या फिर 2 पाई, रेडियंस में 2 पाई होगा। सो हाउ मेनी साइकिल्स डू यू ऑब्जर्व? 2। सो Sir, बी two. वैल्यू इज 2। Okay, good. And A is the amplitude. Amplitude is the distance from this center line to the top point. What is the amplitude of the graph? 4। 4. So A value is 4. ठीक है। दूसरा, इस तरह C की वैल्यू आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते थे। आपको पता है मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो जो C की वैल्यू होगी that is exactly at the center. So 9 plus 1 divided by 2, that is going to give you 5. Central line होगी। Okay, let's do another one. अच्छा, इस पे जरा बात कर लेते हैं रेंज एंड डोमेन पे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि sin x, right now the domain of the graph of sin x is from -half to half. For this domain, is the graph 1 to 1 or many to 1? 1 to 1। 1 to 1, सब एग्री करते हैं? यानी कि अगर 0 से लेके हाफ π/2 तक भी ड्रॉ करते हैं तब भी 1 to 1 होते हैं, लेकिन -π/2 के बाद अगर ग्राफ लोगे, ठीक है, तो वो many to 1 हो जाएगा। तो the least value would be -π/2 and the greatest value over here is, in this case, is going to be π/2। 1 to 1 फंक्शन की बात हो रही है। फंक्शन 1 to 1 है। For every one value of x you are going to get one value of y. This is called 1 to 1 function। क्योंकि हम अपनी रेगुलर क्लासेस में फंक्शंस कर रहे थे, so I thought of linking this chapter to functions as well, because इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सही है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी 1 to 1 है या many to 1 है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये है। अब इस डोमेन तक अगर आप ये डोमेन कंसिडर करें तो फंक्शन की रेंज क्या है? -1 से लेके 1 तक। अगर आपका फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स है और इसकी डोमेन मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं 0 से लेके π/2 तक, तो अब मेरी रेंज क्या हो जाएगी? 0 and 1 यानी 0 0 से लेके 1 तक। ठीक है, all right, now I would like to go to the new graph, that is cosine function। अब ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि साइन के साथ किस तरह का बिहेवियर था, क्या इफेक्ट था ए की वैल्यू चेंज करने से, क्या इफेक्ट था बी की वैल्यू की वजह से, एंड क्या इफेक्ट था सी की वैल्यू की वजह से। सो अगेन आई एम राइटिंग एवरीथिंग डाउन। ए इज द एम्पलीट्यूड, बी इज द नंबर ऑफ कोसाइन फंक्शंस, कोसाइन फंक्शन की साइकिल्स इन 360 डिग्री, and C is the number of units of vertical translation। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक ग्राफ देख लेते हैं कोसाइन 1x का। ठीक है गाइस, दिस इज वन साइकिल ऑफ, सॉरी, B value should be 1। okay guys, this is one cycle of cosine function। now if you observe, cosine function starts from 1, sine function was starting from 0, cosine function starts from 1, फिर cosine of 90 degree is 0, cosine of 180 degree is -1, cosine of 270 degree is 0, and cosine of 360 degree is 1। तो that's one complete cycle of cosine function। क्योंकि आप 360 डिग्री के बाद आप चेक करो, यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ देखो, ये वापस से वही साइकिल आ रही है, फिर देखो 360 डिग्री बाद फिर वही साइकिल आ रही है, नेगेटिव एंगल्स पे चले जाओ, यहाँ पे भी वही साइकिल है। तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस, और आफ्टर एवरी पीरियड दे आर गोइंग टू रिपीट देमसेल्फ। तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक वी वर गेटिंग वन साइकिल। ओके, दिस इज वन साइकिल। नाउ व्हाट्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोसाइन फंक्शन? अगेन यू कैन सी इट्स -1। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? इट इज 1। सो कोसाइन एक्स की भी जो रेंज होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है। ठीक है, अब मैं जल्दी से आप लोगों को ये बता देता हूँ कि क्या वेरिएशंस आती हैं। अगर आप ए की वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं तो आपके ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, या ए की वैल्यू से ये इस तरह का बिहेवियर होता है।
ए की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगी ना तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये हमने बात कर ली। अगर बी की वैल्यू आप चेंज करते हैं तो बी की वैल्यू से नंबर ऑफ साइकिल्स पे इफेक्ट आता है। तो अगर बी की वैल्यू 2 कर दोगे तो पहले अभी 360 डिग्री में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, नाउ इन 360 डिग्री देयर इज गोइंग टू बी 2 साइकिल्स। सही है, बी की वैल्यू 3 का मतलब है 3 साइकिल्स इन 360 डिग्री, यानी कि एक साइकिल वुड बी कंप्लीटेड इन एक साइकिल वुड बी कंप्लीटेड इन 120 डिग्री। इसी तरीके से सी की वैल्यू हाफ कर देते हो तो हाफ साइकिल इन सी की वैल्यू हाफ कर देते हो हाफ साइकिल इन 360 डिग्री। ये देखो यहां से स्टार्ट हुई थी और 360 पे हाफ साइकिल हो रही है, तो फुल साइकिल कब जाके कंप्लीट होगी, आगे जाके 720 पे। सही है, ये सब वही चीजें जो हमने साइन वेव के साथ किया। अब देखो सी की वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ, बी की वैल्यू नॉर्मल रीसेट कर रहा हूं मैं 1 पे। अब सी की वैल्यू वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल ट्रांसलेशन। अगर सी की वैल्यू +1 है तो पूरा का पूरा कोसाइन ग्राफ 1 यूनिट ऊपर हो जाएगा। अगर सी की वैल्यू -1 है तो पूरा का पूरा कोसाइन ग्राफ 1 यूनिट नीचे चले जाएगा। समझ में आई, इस तरीके से मूवमेंट होगी। अब जल्दी से हम स्केच कर लेते हैं कोसाइन फंक्शन को। अगर मुझे स्केच करना है, आप लोग अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें ताकि पहले ग्राफ आप कैलकुलेटर के साथ ही स्केच कर लें। सही है, मैं इस पॉइंट को 1 ले रहा हूँ, इस पॉइंट को -1 ले रहा हूँ। दिस इज 90, 180, 270 and 360 degree. So again, now take out your calculators. Cosine of 0, the value of cosine of 0 is going to be 1. Cosine of 90 is going to be 0. Cosine of 180 degree is going to be -1. Cosine of 270 is 0 and cosine of 360 is 1. If you connect the points, you are going to get one cycle of cosine function from 0 to 360 degree. सही है, -360 से अगर मैं इसको -360 से लेकर 360 तक या ड्रॉ करता तब यही चीज वापस से यही चीज वापस से रिपीट हो जाती। सही है, ओके। ये हो जाएगा -90, -180, -270 एंड -360 डिग्री। सही है, तो -360 से लेकर 360 तक ये ग्राफ बन जाएगा आपका। अब आते हैं, अच्छा कोसाइन फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता था और कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव, जल्दी बताएं मुझे। फर्स्ट और फोर्थ में फर्स्ट एंड फोर्थ में, यानी कि इफ द एंगल इज बिटवीन 0 and 90 कोसाइन फंक्शन इज पॉजिटिव। इफ द एंगल इज बिटवीन 270 and 360 डिग्री कोसाइन फंक्शन की वैल्यू इज पॉजिटिव। अदर देन दैट, इफ इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट इज नेगेटिव, यानी कि उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नेगेटिव होगी। बिलो द एक्स एक्सिस का मतलब है कि ग्राफ पे जितनी भी y कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 लेस देन 0 होंगे, नेगेटिव होंगे। सही है, अब आते हैं, अच्छा इस पे भी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका भी जो पीरियड होता है वो 360 डिग्री होता है, और जो रेंज होगी यानी कि कोसाइन एक्स फंक्शन जो है दैट इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। सही है, लेट्स लुक एट द वेरिएशंस नाउ। y इक्वल्स टू 2 cos x, 2 cos x में क्या होगा, जल्दी से मुझे सोच के बताएं। what is the effect of 2 on the cosine function? एम्पलीट्यूड 2 होगा, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। सही है, तो इट्स गोइंग टू द ग्राफ इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2। ये पॉइंट्स आएंगे आपके पास ग्राफ पे, दिस इज द साइकिल ऑफ 2 cos x। सही है, अब आप देख सकते हैं रेंज क्या हो गई, -2 से लेके 2 तक एक ही साइकिल बनेगी, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, दैट्स वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है आपका 0 पे है। नाउ कोसाइन हाफ x, कोसाइन हाफ का मतलब है हाफ अ साइकिल इन 360 डिग्री, तो 90, हाफ अ साइकिल इन 360, 90, 180, 270, 360 डिग्री। ओके, एम्पलीट्यूड इसका 1 है, तो आई एम मेकिंग दिस एज 1, दिस इज -1। कोसाइन ऑफ हाफ टाइम्स 0 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। कोसाइन ऑफ हाफ टाइम्स 180 वैल्यू आ जाएगी 0। कोसाइन ऑफ हाफ टाइम 360 वैल्यू आ जाएगी -1।
सो ये हाफ साइकिल आ जाएगी। ठीक है, अगर 720 तक आपका डोमेन होगा तो आपको फिर ये पूरी साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन 0 से लेकर 360 तक आप यहाँ पे हाफ साइकिल शो करोगे। मैं डोमेन लिख देता हूँ 0 से लेकर 360 डिग्री तक। और अगर 720 तक होता है तो आप पूरी साइकिल बनाएंगे। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। cos 2x, अब कितनी साइकिल्स होंगी 0 से लेकर 360 तक? और पीरियड क्या होगा इस ग्राफ का, ये मुझे जल्दी से बताएं। जी, हाउ मेनी साइकिल्स डू यू एक्सपेक्ट? 2 cycles in 360. 2 cycles in 360, so one cycle is going to be in 180 degree. So now if you want to find mark the least division, it's going to be 45. ओके, एग्जाम में आपको ड्रॉ नहीं करना, आपको सिर्फ स्केच करना है। ठीक है, तो इट हैज टू बी अ रीजनेबल एक्यूरेट स्केच। एम्पलीट्यूड वही 1 और -1 होगा, बट दिस टाइम देयर आर गोइंग टू बी 2 साइकिल्स ऑफ कोसाइन फंक्शंस। एक साइकिल बना दो, फिर उसी को रिपीट कर दो वापस से। ये एक साइकिल बन गई, इसी को आगे 360 डिग्री रिपीट कर दें। सही है, तो ये 2 साइकिल्स आ गए। रेंज क्या होगी इसकी भी, -1 से लेके 1 तक। अब cos x प्लस 2, cos x प्लस 2 का क्या मतलब है कि जो कोसाइन कर्व है वो 2 यूनिट्स ऊपर चले जाएगा। अच्छा, विदाउट ड्राइंग द ग्राफ क्या आप मुझे इसकी रेंज जल्दी से बता सकते हैं? इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? सर 1 to -1। देखें, जब आप कोसाइन एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, और जब आप इसकी वैल्यू +1 रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3, यानी कि 1 से लेकर 3 तक ये ग्राफ होगा। सही है। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मुझे मार्क करना है तो सबसे पहले y=2 की लाइन मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पे। 3, 1, 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। ये स्टार्ट होगा 3 से ग्राफ, 90 पे आएगा 2। सही है, एक ही साइकिल होगी ना इसकी। आप कैलकुलेटर से ये पॉइंट्स वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे पता है तो मैं जल्दी से मार्क कर रहा हूँ, मुझे आपको सिर्फ इसका शेप दिखाना है। ठीक है, दिस इज कोसाइन एक्स प्लस 2, यानी कि कोसाइन एक्स जो ग्राफ था वो 2 यूनिट्स ऊपर चला गया। ओके, अब 2 cos x -1, इधर दो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं बेसिकली। एक तो आपका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो अब मुझे इसकी रेंज बता सकते हो, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 0 से -2 तक. 0 से -2 तक। सही है, तो cos x is between -1 and 1, 2 cos x is between -2 and 2, and 2 cos x -1 is between -3 and 1. So this graph is going to be from -3 to 1. Let's draw the graph. This is 0, 90, 180, 270 and 360 डिग्री। मुझे -3 से 1 तक जाना है ना। ठीक है, सो ओके, -1, -2, -3, 1। एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली जो लाइन होगी दैट्स गोइंग टू बी एट -1। मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की है 1 और मिनिमम वैल्यू है -3। ये कोसाइन एक्स का ग्राफ है तो 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पे 90 डिग्री पे। ये 90 की वैल्यू, 90 डिग्री पे -1 वैल्यू हो जाएगी। 180 पे 180 पे वैल्यू -3 हो जाएगी, 270 पे -1 एंड 360 पे 1 अगेन। ठीक है, ये 2 cos x -1 का ग्राफ हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है यार सबको?
सबको क्लियर है यहाँ तक? यस, नो, एनीथिंग? ओके ओके, इसी तरीके से y इक्वल टू कॉस x माइनस 90 डिग्री, मुझे बताओ क्या होगा, और y इक्वल टू कॉस x प्लस 90 डिग्री की क्या किस तरह का ग्राफ होगा? कोसाइन x माइनस 90 डिग्री का मतलब है द ग्राफ विल मूव 90 डिग्री टू हॉरिजॉन्टली, 90 डिग्री टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट? Right. टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। एंड कोसाइन ऑफ x प्लस 90 डिग्री का मतलब है दैट द ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन इज गोइंग टू मूव 90 डिग्री टुवर्ड्स द लेफ्ट। सही है? ओके अब कोसाइन एक्स का ग्राफ 1 to 1 फंक्शन 0 से लेके पाई तक होगा। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि एक फंक्शन है y इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डोमेन है लेस देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू k, और आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k, स्टेट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच cos x यानी कि ये फंक्शन इज 1 to 1। तो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो फंक्शन 1 to 1 हो? इस ग्राफ से देख के बता दो। k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए गाइस? आंसर क्या होगा इसका? k इज इक्वल टू, कम ऑन ग्राफ देखो और मुझे बताओ कि ये ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू k की क्या होनी चाहिए कि ये ग्राफ 1 to 1 हो? ये डोमेन है, सही है। एक्स एक्सिस पे देखो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से स्टार्ट हो रहा है आपका ग्राफ, और ये कब तक 1 to 1 होगा? पाई k की वैल्यू अगर पाई अपॉन 2 होगी तब भी 1 to 1 होगा, बट पाई अपॉन 2 इज नॉट द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? पाई, सही है। सो k की वैल्यू वुड बी पाई, द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अच्छा अब जल्दी से देख लो, अगर ये डोमेन है आपका, सही है, ये डोमेन है आपका, तो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेके 1 तक। सो कोसाइन फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मुझे बताएं ए, बी और सी की वैल्यूज क्या होंगी? ये 3 होगा। ए वैल्यू वुड बी, 3। ओके मैं वापस से इक्वेशन लिख देता हूँ, y इक्वल टू ए प्लस बी कॉस सी एक्स। अब देखो इस इक्वेशन में इन लोग ने ना लेटर्स ए बी सी है ना थोड़े से चेंज कर दिए हैं, आप इसको अपने मतलब से लिख दें बी कॉस सी एक्स प्लस ए। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये है, नंबर ऑफ साइकिल्स ये बताएगा, और ए की वैल्यू इज द वर्टिकल ट्रांसलेशन। तो किसने मुझे आंसर दिया था? ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास? 3। 3। सो इन दिस केस ए इज 3, गुड। बी क्या है? हाउ मेनी साइकिल्स कैन यू सी इन 360 डिग्री? 3. 3। सो बी, सॉरी यहाँ पे सी की वैल्यू वुड बी 3, ठीक है, बिकॉज सी की वैल्यू डिटरमाइंस यहाँ पे कि कितनी साइकिल्स हैं, 1 साइकिल, 2 साइकिल एंड 3 साइकिल्स। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी गोइंग टू बी? 2। 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्टेंस जो है वो 2 है, सो बी वैल्यू वुड बी 2। ओके, थैंक यू एवरीवन।